Hello children, welcome to chapter number 3 in your biology textbook Science 2 Life Processes in Living Organisms. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसमें हमने वी हैड लर्नड अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोटिक सेल डिविजन एंड मियोटिक cell division, how it happens in cells. Okay, in this chapter we will learn about another life process which is very important for the survival of organisms. Okay, आप देखते होंगे कि हर एनिमल के बच्चे होते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं. ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज देयर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग इज अनदर नेम फॉर चिल्ड्रन. ओके, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? पेरेंट्स के बच्चे, किसी के बच्चे. तो हाउ डज दिस हैपन? ये दिस प्रोसेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, ये कैसे होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस करना. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? दोबारा प्रोड्यूस करना. आप देख रहे होंगे, कहीं पर भी आप देखो, कोई भी एनिमल को देखो, कोई भी इंसान को देखो, आप क्या देखेंगे कि आदमी को ही मतलब पैदा करता. मतलब ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू ह्यूमन बींग्स, डॉग्स गिव बर्थ टू डॉग्स, cats give birth to cats, birds give birth to birds of that particular species. जैसे peacock will not give birth to a sparrow, correct? A dog will not give birth to a cat. So what is that? That is called continuation of species. अभी continuation of species के लिए it is very important to reproduce, है कि नहीं? Without reproduction हम भी कभी किसी एक प्रोसेस, हम भी reproduce, we are also product of reproduction. yes, हमारे पेरेंट्स ने हमको रिप्रोड्यूस किया, वैसे ही हम लोग भी आगे एक जनरेशन रिप्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो दैट प्रोसेस वेयर मैच्योर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प्स मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. लेट मी राइट इट हियर. Maintains continuity of species. Okay, reproduction maintains, it's a life process. Okay, one of the life processes. We saw many other life processes in the previous chapter. So in this chapter we will see the life process called reproduction. So what does it do? Reproduction maintains the continuity of species. How does it take place? It takes place in mature organisms to produce new organism of same species. ये mature का मतलब क्या है? Mature का मतलब है bigger, मतलब जिसमें पूरा fully developed. Mature means fully developed. अभी जैसे बच्चे reproduce क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि they are not fully developed. After a certain period of time, every organism fully develops. जैसे human beings में full development happens after puberty. Okay, मतलब after 18-19 years we are completely mature and we can reproduce. Yes, but before that it is not possible to. It may be different people reach maturity at different ages. So लेकिन a young child 9-10 years old cannot have a child because they are not fully mature. So maturity is very important for reproduction. Okay, so after maturity जब organisms रिप्रोड्यूस करते हैं तो दे गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म बट ऑफ द सेम स्पीशीज. ये भी याद रखिए कि एवरी टाइम रिप्रोडक्शन हैपेंस द सेम स्पीशीज इज कंटिन्यूड. कोई और स्पीशीज कंटिन्यू नहीं होता. लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, डॉग रिप्रोड्यूस करेगा तो इट विल नॉट रिप्रोड्यूस अ कैट. यस, because it is not of the same species. Animals have many species. Okay, human beings are one variety. Animals have many species, so human beings will always give birth to human beings, not to animals. Like that, animals of a particular species, lion will only give birth to a lion. Okay, tiger only to a tiger, zebra only to a zebra. आपने कभी देखा नहीं होगा कि zebra ने कोई जिराफ को बर्थ किया है, क्या नहीं? तो that is the meaning of this reproduction. Reproduction, दोबारा प्रोड्यूस करना. कैसे? For what? To maintain the continuity of the species. And where does it take place? It takes place in mature organisms to produce new organisms of same species. Now, there are two types of reproduction. Two methods, two ways in which reproduction takes place in
देखो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ऑल्सो, है ना, इन बैक्टीरिया ऑल्सो, reproduction takes place in almost every living organisms, इसलिए they are continuously found on the earth. Why? अगर हमको पता है कि सब organisms का एक लाइफ स्पैन होता है ना, we all have a life span. We human beings live for maximum 80 to 90 years. Okay, then animals, some animals can live up to 150 years, some up to 200 years. There are some species of turtles and tortoises that can live for very long. Okay, they have found. So there are some animals, and then there are some types of bacteria also that can survive for very long periods of time. Yes, but someday they will die. Yes, so how is it that they are still found on the earth? Because of रिप्रोडक्शन. ठीक है, क्यों अभी भी हमको वो चीज़ें, वो सब ऑर्गेनिजम्स अभी भी हमको दुनिया में मिलती हैं? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 2 ways. ओके, ध्यान से देखिए, रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होती है. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब ए सेक्सुअल के आगे ए जुड़ जाता है मतलब इट इज नॉट सेक्सुअल. ओके, वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज अ नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन many bacteria, in plants, बहुत सारे plants में. There are some plants जिसमें है sexual reproduction, we will see ahead, but right now we need to know the difference between sexual and asexual reproduction. Okay, so now let's see what is the difference between sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction needs 2 parents. ठीक है, आप कोई भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखेंगे दुनिया में जिसका एक ही पेरेंट है. ऑफ कोर्स अगर किसी के पेरेंट का किसी का डेथ हो गया या तो ऑफ कोर्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फॉर अ बेबी टू फॉर्म इन द स्टमक 2 parents are required, father and mother. Okay, without father the mother cannot conceive. Okay, mother जो egg release करती है, the egg that the mother releases is fertilized by the sperm released by the male. That's how sexual reproduction takes place. So how many parents are involved? 2 parents, a father and a mother. Okay, in all, even if you see in all animals also there's a male and a female. Okay, so that's how sexual reproduction takes place. How does asexual reproduction take place? It is uniparental. Uniparental, uni का मतलब क्या है? uni is a ग्रीक वर्ड है कुछ तो है जिसमें यूनि का मतलब है 1. ओके, वी नो ना, यूनिट मीन्स व्हाट 1. तो यूनि मीन्स, यूनि पेरेंटल मीन्स 1 पेरेंट. तो इसको मदर की या फादर में कोई सेक्स नहीं होता, मतलब मेल फीमेल करके कुछ नहीं. जैसे बैक्टीरिया है वो दे जस्ट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, मतलब दे डोंट हैव एनी प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन. एज दे मैच्योर and if they have the right amount of nutrients they will reproduce. Okay, they keep breaking up. अभी जैसे ईस्ट को देखते होंगे, जो हम ब्रेड में ईस्ट डालते हैं जिससे फर्मेंटेशन होता है, वो भी क्या है, वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो ये हो गया मेन डिफरेंसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 parents, asexual reproduction is uniparental. Okay, now what's the second difference? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था अबाउट गैमीट्स. यस, स्पर्म एंड एग. यस, नाउ for sexual reproduction sperm and egg is required. What are gametes? The sperm and the egg. Okay, without this reproduction cannot take place. Asexual reproduction में ये this is absent, there is no sperm, no egg. Okay, it's a completely different, no gametes are involved. अभी because there are no gametes involved there is no genetic variation in asexual reproduction. लेकिन because gametes are involved in sexual reproduction there is a lot of genetic variance. genetic variance मैंने बताया था आपको लास्ट लेसन में. आपने अगर देखा नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि जेनेटिक वेरिएंस कैसे होता है. बिकॉज ऑफ मियोसिस. मियोसिस इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से स्पर्म एंड एग में जो जिसकी वजह से जब स्पर्म एंड एग का यूनियन होता है, एक ही घर में इतने सारे वैरायटी के बच्चे होते हैं अलग अलग दिखने वाले. इतना जेनेटिक वेरिएशन जो है, मतलब सबका बिहेवियर अलग है, सबका कलर अलग है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो क्यों होता है वो? जो जीन जेनेटिक वेरिएंस किसी का बाल ब्राउन हो तो किसी का काला, एक ही घर के अंदर. किसी का नीला आंख है तो किसी का ब्राउन आंख है, एक ही घर के अंदर. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएंस. लेकिन आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो जेनेटिक वेरिएंस. उसमें क्या होता है, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था, जब वो सेल ब्रेक होके दूसरा 2 डॉटर सेल्स में फॉर्म होता है तो क्या होता है, द सेम डीएनए एंड क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल इज received by the daughter cells. Yes, the same thing happens in asexual reproduction of organisms, but in sexual reproduction there is genetic variance because of gametes. Okay, got it?
नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मियोटिक सेल डिविजन. मियोसिस हमने पढ़ा था, हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस मियोटिक सेल डिवीजन है, वाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोटिक सेल डिवीजन. ओके, ये माइटोसिस से होता है, ये मियोसिस से होता है, कभी ना भूले. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, यूजुअली जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो जिससे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में 9 months लगता है एक बच्चे को फुल्ली डेवलप होके टू बी बॉर्न. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी क्विक प्रोसेस, बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज इट? लेट्स रिवाइंड. Sexual reproduction, what is reproduction in the first place? Reproduction is the process, it takes place in mature organisms to produce new organisms of the same species. Okay, it is a life process that maintains the continuity of the species of an organism. Please आपके notebook में भी लिख के ले लीजिए ये सब. Okay, there are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. The difference between sexual and asexual reproduction: sexual reproduction requires two parents, asexual reproduction is uniparent. Sexual reproduction requires gametes, asexual reproduction doesn't require any gametes. Sexual reproduction has genetic variance in the offspring, asexual reproduction has no genetic variance in the offspring. Sexual reproduction takes place by meiotic cell division, asexual reproduction takes place by mitotic cell division. Sexual reproduction is a slow process, asexual reproduction is a quick process. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. अभी हमें आगे देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल मतलब जिसमें एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स है. सो लेट्स लर्न अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. तो अभी हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें एक ही सेल है. वन, यूनि मीन्स वन. ओके, तो अभी हम एक एक करके एक एक टाइप देखेंगे. पहले हम देखेंगे बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन क्या होता है? ओके, बाइनरी फिशन. अभी ये वर्ड में आपको ये फिशन का दूसरा वर्ड है डिवीजन. ओके, तो आप ना इसी में आप एक देख रहे हैं बाई लिखा है. बाई का मतलब क्या है? दो. तो वो सेल दो में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो आप बेसिक ये याद रखो, बाइनरी फिशन में एक सिंगल सेल दो में विभाजित होता है. कैसे होता है, हाँ, और कौन से टाइप के परफॉर्म करते हैं? चलो हम लोग देखते हैं कि विच टाइप्स परफॉर्म दिस बाइनरी फिशन. विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द बाइनरी फिशन दैट परफॉर्म दिस आर प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आता है प्रोकैरियोट्स. थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए कैसा होता है. बहुत ये थोड़ा डिफिकल्ट स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया. फिर प्रोटिस्ट्स. प्रोटिस्ट में आते हैं हमारा एमीबा, पैरामीजियम, यूग्लिना. आपने सुना होगा ना एमीबा एंड पैरामीजियम के बारे में. अमीबा, फिर पैरा, MOECIUM, पैरामीशियम, फिर यूग्लिना. ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, ये है आपके प्रोटिस्ट. ठीक है, और ये जो बाइनरी फिशन है और भी किधर होता है? हमारे ऑर्गेनल. हमारा हमने पढ़ा था हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. पढ़ा है ना जब हम DNA पढ़ रहे थे. तो उसके अंदर भी बाइनरी फिशन होता है. आपने देखा है ना जब सेल डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होता है. तो इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स लाइक mitochondria and chloroplast. Okay, so where does binary fission takes place? The types that perform this binary fission, one is prokaryotes. Let me underline it for you. In prokaryotes, in protists and eukaryotic organelles like mitochondria and cytoplasm. Protists कैसे? Amoeba, Paramecium, Euglena.
prokaryotes are bacteria, eukaryotic organelles like mitochondria and chloroplast. अभी कौन से माइटोसिस से होता है कि मियोसिस से होता है? बाइनरी फिशन, कैन यू गेस? Mitosis, very good. How does it take? The mode that it takes for mode of fission is mitotic. Mitotic, और इसमें एक और है माइटोटिक और एमाइटोटिक. अमाइटोसिस हम आगे देखेंगे. ओके, माइटोसिस और एमाइटोसिस. अभी ये फिशन होने के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बाइनरी फिशन टू टेक प्लेस? Requirements for binary fission to take place. Favorable conditions like availability of sufficient food. अगर sufficient food is available तो binary fission हो जाता है. ठीक है? So what is the main requirement for binary fission to take place? Availability of sufficient food. Okay? Of sufficient food. Okay, so let's rewind. Binary fission or division क्या होता है? Which types perform these? Prokaryotes like bacteria, protists like amoeba, paramecium and euglena, eukaryotic organelles like mitochondria and chloroplast. कैसे होता है? By mitotic division or amitosis. हाँ? माइटोसिस लिख लो. ओके, माइटोसिस और अमाइटोसिस. रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये बाइनरी फिशन होने के लिए सफिशिएंट फूड होना चाहिए, सफिशिएंट न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो ये माइटोटिक डिवीजन बाइनरी फिशन हो जाता है. ओके, तो अभी ये बाइनरी फिशन होता क्या है? हाँ, आई थिंक हम लोग बाइनरी फिशन ये होता क्या हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिप किस टाइप के होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस अलग अलग तरीके से होता है. हमने फर्स्ट यहाँ जस्ट स्टार्ट किया है बाइनरी फिशन. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और ध्यान से देखेंगे कि बाइनरी फिशन होता कैसे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो let's rewind all this in your please go through this video once more to understand completely what is reproduction. Okay, and then we will go ahead and learn about binary fission in the next video. Okay, so see you in the next video.